بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عوام کی ذات کے ساتھ، ان کی بنیادی ضرورت کے ساتھ جڑی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ کوالٹی ضروریات اشیاء ہیں۔ سستی، ارزاں اور بہتر کوالٹی کی کھانے پینے کی اشیاء یقینی بنانا ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جیل سازوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف جہاد کا صوبہ پنجاب میں اعلان کیا۔ اس چیلنج کو، مافیا کو جو ہم نے چیلنج کیا، اس کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے جو گٹھ جوڑ تھا، نیٹ ورک تھا، جو ہمارے ہر ادارے کے اندر بیٹھے ایسے افراد کے سپورٹر اور بیک پہ بیٹھے سہولت کار تھے، ان کے لیے یہ ظاہر ایک بری خبر تھی کہ حکومت پنجاب نے وہ ڈنڈا اٹھا لیا، قانون کا ڈنڈا، جس کو گرام فروشی آرڈیننس 2020 کا نام دیا گیا، اور اس کی زد میں ذخیرہ اندوز اور منافع خور تو آئے جو ناجائز منافع خور تھے، لیکن اس کا سب سے پہلا فوکس وہ افراد جو عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ملاوٹ کر کے ہمارے بچوں کا جسمانی اور ذہنی معذوری میں حصے دار بن رہے ہیں، اور ہماری نسل کو صحت مند توانا بنانے کی بجائے وہ اشیاء ضرورت جو ہیں وہ ان کے لیے مختلف بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں۔ تو لہٰذا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا آج کا ہمارا جو وزٹ ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ چیئرمین صاحب، میں اور ان کی ٹیم جو ہے، آج میڈیا کی آنکھ سے یہ بتانے کے لیے یہاں موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے کاوشیں اور کوششیں پنجاب فوڈ اتھارٹی آپ کو مضر اشیاء سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، ایک تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسرا ان کے اس کام کو کس طرح ہم میڈیا کے ذریعے عوام تک ایک پبلک سروس میسج کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اس میں کیسے حصے دار بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے۔ ایک طرف حکومتی اقدامات ہیں جس کا مقصد آپ کی جانوں کو اس ملاوٹ مافیا سے محفوظ بنانا ہے، تو دوسری طرف آپ کا رسپانس ہے گورنمنٹ کو حقائق پہنچا کے، ایسے افراد کی نشاندہی کر کے، اور پھر قانون کی عملداری کو یقینی بنانا آپ کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے آپ کے ٹھیلوں سے لے کے 5 اسٹار ہوٹل تک اور گلی محلوں سے لے کے موٹر ویز تک جو چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ملاوٹ مافیا کی سرکوبی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں، میں ان کی اس کاوش کو
खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हमारा दूध वो एक अल्लाह की नेमत है जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग और हर शहरी और दुनिया भर में बसने वाला इंसान जो है उसके लिए अल्लाह की इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती। हमारे इन माफियाज ने उसके अंदर मिलावट करके जिस तरह उस रहमत को हमारे लिए ज़हमत बना दिया है, और वो एक दूध का गिलास जिसको हम अपने लिए एनर्जी समझते हैं, हम उससे वायरस, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैसे दे के ख़रीद रहे हैं। तो उस माफिया से निपटने के लिए जो मिल्क टेस्टिंग अमल का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत जो हमारी रूरल एरिया से दूध अर्बन एरियाज़ में बड़े शहरों में आता है, उनकी मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स की बिला नागा तैनातियाँ की गई हैं। अब तक 71,402 दूध बरादर गाड़ियाँ और 43,491 मिल्क शार्ट पर 34,35,918 लीटर दूध जो है उसको चेक किया गया है। और जैसे कि बता रहे थे आपको कि फूड स्क्वाड बनाए गए हैं कि बहुत सारी जगहों पे शायद जो है वो टोल फ्री नंबर के ज़रिए शिकायत पहुंचाने में टाइम लगे, शायद उन लोगों को इतना शऊर और आगाही ना हो, वो अपनी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की इस कैंपेन से मुस्तफ़ीद ना हो सकें। तो हमारे जो स्क्वाड हैं वो खुद उन जगहों पे पहुंचेंगे और वहाँ वो चेक करेंगे कि वहाँ हमारे ये भेड़िए जो हैं मुआशरे के ये कारोबार के नाम पे अवाम की जानों से खेलने वाले दरिंदे और भेड़िए ये किस तरह से अवाम को और ख़ुसूसी देहात के अंदर रहने वाले और शहरों के अंदर बसने वाले जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की अट्रैक्टिव कोई स्लांटीज़ हैं, कोई चिप्स हैं, कोई केचप है, कोई उनके लिए टॉफ़ियाँ चॉकलेट के रूप में, गर्ल्स के हर वो चीज़ जिससे बच्चा अट्रैक्ट होता है उसके अंदर मिलावट पाई गई है। और वो मिलावट शुदा अशिया जो हैं उनका ना सिर्फ हम उनको मौके पे तलब करते हैं, ज़ाया करते हैं, बल्कि एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, एक अमल ये है कि जो बेच नहीं सकता वो उस पर टैग करके उसकी एक्सपायरी डेट को बदल के सस्ते दामों देहात के अंदर वो अशिया बेची जा रही हैं, जिसके लिए हुकूमत ने अब उन अनासर को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया। इसके तहत जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है एक्सेस ऑफ फूड रेगुलेशन, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में यकसा लागू किया जा रहा है और पंजाब जो है उसको एहसास प्रोग्राम के तहत मुंसलिक करके इसका बेनिफिशरी बन के बाकी सूबों के लिए एक ट्रेंड सेट करने जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो हमारा पास्चराइजेशन लॉ है, चूँकि दूध को महफूज बनाने के लिए और उसके बाद आप तक पहुंचाने के लिए हमारे जो रूल्स तो मौजूद हैं, लेकिन जो सज़ाओं के साथ जुड़ा अमल है उसके अंदर गैप है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो कानून साजी करने जा रही है। इसके अलावा जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले 2 सालों में जो काम किया है और जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है, उसमें इनके लिए वज़ीर आला पंजाब ने जो एक चैलेंज नया सेट किया है, चेयरमैन साहब को ये ड्यूटी दी गई है कि ये खुद चूँकि अवामी नुमाइंदा है और दूसरी तरफ हमारी इंतज़ामिया है,
تو ان دونوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جس چیلنج کو اوور کم کرنا ہے کہ یہاں ہمارے پانی کا ہر دوسرا بندہ جو پانی کی بوتل پکڑ کے وہ منرل واٹر سمجھ کے پی رہا ہے، وہ منرل واٹر نہیں، منرل واٹر کے وہ کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کرتا۔ جو کولڈ ڈرنکس ہیں اور جوس ہیں وہ اس سٹینڈرڈز اور ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، اور جہاں جہاں انٹرنیشنل ایس او پیز اور برانڈز ہیں وہ اس کے ایک سیٹ پروسیجرز ہیں، اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اپنی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے انٹرنیشنل ان کا اپنا ایک مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کے اندر یہ ملاوٹ اور جس طرح سے انگریڈینٹس جو باہر دکھائے گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لیبارٹریز ہی اس عمل کو یقینی بنا سکتی ہیں، اور ضلعی سطح پہ ہم ان فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا ایک دائرہ کار وسیع کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو اس میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ تحصیل اور ضلع کی سطح پہ جو انتظامیہ ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ان کے شہروں میں عوام کی جانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ذمہ داران جو ہے وہ کسی صورت بھی قانون کے شکنجے سے نہ بچ پائیں۔ آخر میں چونکہ ایک ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے بڑے فرینچائز ہیں، جتنے بڑے فوڈ فرینچائز ہیں، انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں، وہ کس طرح اسٹیٹ آف آرٹ 100% ہمیں کوالٹی فوڈ دے رہے ہیں، کیا اس پروسیس کو آپ لوگ جتنے جاتے ہو، جو باہر جن کو اتفاق ہوتا ہے اور جو پاکستان میں وہ نہیں چین سے کھانا کھاتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ان ریستوران میں جاتے ہیں، تو بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ وہ بھی سب سٹینڈرڈ ہیں، اور وہاں پہ بھی جو ہماری ہیلتھ ہائیجین ہے، جو ہمارے کوالٹی فوڈ کے ایس او پیز ہیں ان کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ اس کے لیے بھی چیئرمین صاحب اور پنجاب فوڈ اتھارٹی ایسے پوائنٹس کو رینڈم چیکنگ کی طرف جا رہی ہے، اور یہ انشور ہم کرنے جا رہے ہیں کہ بڑا نام جتنا مرضی بڑا ہو، قانون کے تابع سب کو آنا ہے، اور بڑا جب قانون کے تابع آئے گا تو نیچے ٹھیلے والے اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آپ سب کا یہاں آنا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاوشوں کو تقویت دینا، اور میڈیا کے ذریعے میڈیا کی پارٹنرشپ سے ہم عوام کو یہ آگاہی دینے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے، اور آپ کی تجاویز کے لیے بھی ہم متمنی ہیں، کیونکہ یہ ایسا جہاد ہے جو میڈیا کے تعاون کے بغیر اس جہاد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دورہ کیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا، اس کا قیام شہباز شریف نے کیا تھا، کیا یہ منصوبہ شفاف ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت جو انڈوں کی قیمت ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کیا اس کے اوپر کوئی نوٹس، کوئی حکومت اس کے اوپر ایکشن لے گی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو فوڈ اتھارٹی قائم کی گئی تھی اس کے اندر پچھلے ماضی کے اندر اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کیا گیا، بہت سے ریسٹورنٹ کو سیل بھی کر دیا گیا، حال ہی میں مریم نواز نے بٹ کڑائی پہ کھانا کھایا اور اس کو بھی سیل کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو صرف ایک شہر تک، ایک صوبے تک اور ایک کسی مخصوص اسپیسیفک شہر تک محدود کرنا اس عمل کی نفی ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا، کیونکہ یہاں ہمیں جو ہے وہ
آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اس آواز کو تقویت دینی ہے کہ حکومت یا عوام صرف بڑے شہروں میں نہیں بستے، جو چھوٹے شہر دیہات ہیں 70% لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو جو سابقہ دوار میں ترقی کا پہیہ اور صرف ایسے اقدامات بڑے شہروں تک محدود رہے، ان کو ہم نچلی سطح پہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس تبدیلی کا سفر ہے جس میں ہر شہری جو ہے مستفید ہوگا۔ جو آپ نے دوسری انڈوں کی بات کی، تو دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ سردیوں میں وہ بیکریز ہوں، وہ شادی ہال ہوں، وہ ریسٹورنٹس ہوں، جو گھر کے اندر رہنے والے افراد ہوں، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پولٹری اور پولٹری کموڈٹی اور پروڈکٹس کی۔ اس کے لیے بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کو کریڈٹ اس حوالے سے جاتا ہے، اس سے پہلے جو گندے انڈوں کے ذریعے بیکریز کے اندر کنزمپشن ہوتی تھی، جو ایکسپائرڈ انڈے تھے ان کو بیکریز میں یوز کر لیا جاتا تھا اور بسکٹ کی فیکٹریوں میں یوز کر لیا جاتا تھا، کیکس میں یوز کر لیا جاتا تھا۔ جب سے یہ قانون کی عملداری کے لیے انہوں نے شکنجہ سخت کیا ہے، تو اب وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ آ گیا، کیونکہ جو لوگ پہلے وہ گند آپ کو کھلاتے تھے، اب انہیں مارکیٹ سے وہ ایکچوئل جو ہمارا کوالٹی پروڈکٹ ہے وہ لینی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے پیچھے آگے ڈیمانڈ بڑھی، سپلائی اتنی نہیں ہے، تو یہ کرائسس آیا جو وقتی ہے۔ اس کو حکومتی سطح پہ منسٹر فوڈ کی سربراہی میں ایک کمیٹی اینالائز کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی معافی ہے یا واقعی جینون ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے۔ اس کا عوام کی اس تکلیف کا ازالہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن نے تو نہیں ساری مرغیاں خرید لی اور وہ انڈے اپنے پاس رکھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور حکومت اور اداروں کو نہیں دے رہے اور انڈے مہنگے ہو گئے ہیں، یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کی حکومت کے خلاف اپوزیشن یہ سازش کر رہی ہو امین حفیظ انڈے مارکیٹ میں مہنگے ہو جائیں؟ امین حفیظ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں گندے انڈوں کی طرف آؤں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف آؤں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کے اگر آپ نکال لیں ڈیٹا اور ایک پورا انالیسز، تو یہ بھی آپ کو جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ جہاں باقی ہر شعبے میں انہوں نے کسی کو موقع نہیں دیا کہ کوئی اور بھی کاروبار کرے، تو یہ پولٹری اور یہ سارا اس کے ساتھ جڑا شعبہ جو ہے وہ بھی ایک ہی خاندان کے چھتری کے نیچے پروان چڑھتا رہا ہے، تو وہ پولٹری فیڈ ہو، وہ پولٹری کا گوشت ہو، وہ پولٹری کے ساتھ جڑے انڈے ہوں، ان کی اجارہ داری وہاں پہ بھی رہی ہے۔ تو اس سے ہم یہ بتائیے گا، فوڈ اتھارٹی نے بہت چھاپے مارے، بہت چلان کیے، ایسا کیا ہے کہ خالص دودھ آج بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا؟ یہ بتا دیں خالص دودھ کب اور کہاں سے ملے گا لوگوں کو کہ اپنے بچوں کے منہ میں اللہ کی نعمت خالص ڈال سکیں؟ خالص دودھ تو ماں کے گود سے ملے گا، اور ماں ہی کا دودھ 100% خالص دودھ ہے جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے۔ باقی جو ہے ہم اس کو خالص بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے۔ میرا بھائی بتائے گا آپ کو کیا اس کا جو نہیں جعلی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ٹیکے جو مطلب وہ جعلی دودھ نہیں جعلی نہیں دیتی، وہاں ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھینسوں کو دیہات کے اندر دودھ کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے، مصنوعی پروڈکشن بڑھانے کے لیے انجیکشن لگا کے
वो दूध जो है आलूदा किया जा रहा है। बाकी चीज ये बात करते हैं। आप लेट हिम आंसर, लेट हिम आंसर। मैं जरा दूध वाले सवाल का प्लीज जरा सुन लीजिएगा। दूध वाले सवाल का मैं आपका जवाब दे दूं। हमने पिछले 2 साल मैं दूध क्या बता क्या मार्केट में 80-90 रुपए किलो मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी इस बात मैं एक सेकंड बैठे ना, बस जमीन हो गया ना, क्वेश्चन पूछ लो जो देर है भाई, जवाब तो सुन लो ना, बात पहले मुझे भी कर लेने दें। गुजारिश ये है कि जो इस वक्त दूध का एक क्राइटेरिया जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेट किया है, दूध में 2 चीज़ें हैं, एक SNF है और एक उसकी फैट है, जिससे पता चलता है कि दूध की क्वालिटी कैसी है। हम जो खालिश दूध की बात करते हैं, किसी भी दूध के अंदर चाहे पानी डाल दिया जाए या कोई भी और अडल्ट्रेशन की जाए तो वो खालिश नहीं रहता। ये आपकी बात ठीक है, जो 80 रुपये या 90 रुपये में मिलता है उसके फैट लेवल और SNF लेवल जो है वो कम होता है, उसकी ग़िज़ाई जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना उसमें जब खालिश निकलता है, भैंस से मिल्किंग की जाती है तो उसकी जो क्राइटेरिया है वो उससे मैच नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि हमने लगातार उसके ऊपर इंस्पेक्शंस भी जारी है, लगातार उसे, और सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त फूड के ऊपर है, दूध के ऊपर है हमारा। अब इसमें हम आगे जो करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में खुले दूध का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें अभी तक अवेलेबिलिटी है, और हमने पिछले 2 साल में वो पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने सर्वेस किए हैं और इंशाल्लाह कैबिनेट की अप्रूवल के बाद हमने कैबिनेट के एजेंडा में रख दिया है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि लाहौर में हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर खुले दूध को एक मखसूस एरिया में बैन करने लगे हैं और वहाँ पे पास्चराइज मिल्क जो है उसको उसकी अवेलेबिलिटी करेंगे। बस खत्म हो गया ना। आई है पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर, आप कहती हैं हमने जालसाज और माफियाज को पकड़ना है। एक जालसाजी नवाज शरीफ की रिपोर्ट के साथ हुई थी जिसकी बुनियाद पर वो इंग्लैंड चले गए। आपकी जहादी टीम ने उस जालसाज माफिया को पकड़ने के लिए अब तक क्या किया? देखिए, बात ये है कि जिस नेटवर्क का हम जिक्र करते हैं, ये आप मूवी देखा करते थे ना बचपन में कि जहाँ इंटरनेशनल लुटेरे, और जिसमें हर मुल्क में जहाँ जिस तरफ मुंह करते थे उन्होंने अपना एक हब और बेस बनाई होती थी। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने हर शोबे के अंदर अपने मनपसंद हवारी और दरबारी भर्ती करके अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठाए हुए हैं। तो क्या और ये भी उसी लुटेरों का हिस्सा, क्योंकि यास्मीन राशिद साहबा ने भी तब गारंटी दी थी कि यास्मीन राशिद साहबा किसी लैब को ना चलाती हैं और ना उनकी कोई लैब है। वो लैब की रिपोर्ट्स जो हैं उनकी बेस पे अदालतों ने और हुकूमत ने उनकी सेहत का पैमाना फिक्स किया था कि वो लागर हो गए हैं, वो इतने बीमार हो गए हैं कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर जो सैंपल लाने वाले और फिर वो सैंपल को एनालाइज करके रिपोर्ट देने वाले जो है, उनके हवाले से उनकी मंजी ठोकने की जरूरत पड़ गई है। बाकी चीजें जो है बाकी सारी जो है वो आपको पता है क्या। पोल्ट्री की सन्नत में आपने एक फैमिली का नाम लिया, उस फैमिली का नाम ही आज बता दें, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान कहा करते थे कि जब कुकरी की प्राइस बढ़ती है तो हमजा शहबाज कुकरी उन्होंने नाम डाला था। क्या ये वही फैमिली है या कोई और फैमिली है? देखिए, बात यह है कि इसमें तो किसी को शक ही नहीं है कि पोल्ट्री के कारोबार के फीड से लेके ब्रायलर मुर्गियाँ, वो मैं कनीज़े अव्वल दोयम की बात नहीं कर रही हूँ, जो ब्रायलर मुर्गियाँ जिनको मार्केट में लाने से पहले वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की टीम जो है और वो तयन करते थे कि आज मार्केट में रेट क्या होना चाहिए। तो जो रेगुलेट करते थे इस कारोबार को, और वो एक ही ख़ानदान है, और मैं नहीं समझती कि अभी वो अपने उस अमल से बाज आए हैं। जेल में भी बैठ के हो सकता है कि ये उनकी कारस्तानी बरूए कार लाई जा रही हो, और मैं समझती हूँ कि अभी हमें इस चीज़ पे, जब आप एक रेगुलेटरी प्रोसेस को अंडर सर्टन रूल्स एंड पैरामीटर्स सेट कर देते हैं, तो हमें फिर ये उसकी आर्म ट्विस्टिंग करने वाले, उसको कानून की आड़ में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो हैं,
उनकी फिर दुकान बंद हो जाती है। ये दुकानें उस वक्त चलती हैं जब कानून की दुकान जो है उसमें सौदा ना हो। तो अब कानून की दुकान में सौदा है। मैडम आप ये बता दें कि इमरान खान ने जो मशवरा दिया था मुर्गी और अंडों का, क्या ये जो कारस्तानियां हैं इन्हीं को देखते हुए ये मशवरा दिया गया था कि इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, अंडों के रेट भी बढ़ सकते हैं, मुर्गी का रेट भी आसमान को छू सकता है? देखिए, जो आपकी इंटरनेशनली माइक्रो इकोनॉमिक एंड क्रेडिट पॉलिसी है उसके अंदर दुनिया भर में लोगों ने मुर्गियां भी पाली, उससे पैसे भी कमाए, उन्होंने छोटे जानवर भी पाले, उनसे भी पैसे कमाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक कॉमन मैन को एम्पावर करने वाला। बाकी उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन ये इंटरनेशनल कॉमन मैन एम्पावरमेंट प्लान है और वज़ीर आज़म ने उसी को बुनियाद बनाते हुए देहात के अंदर इसको मुतारिफ कराया था, ताकि घरों के अंदर कोई बेवा औरत है, कोई डिसेबल्ड है, कोई यतीम बच्चे हैं, तो वो अपने घर के अंदर कोई रोजगार का कोई है कर लेता है। ज्यादा हो रहा है ऑपोजिशन में, उस्मान बुज़दार ऑपोजिशन के जलसे में गए थे क्या? कि जैसे पहले नहीं रोका आपने, इस बार भी नहीं रोका। और कल आपने ट्वीट किया था कि ऑपोजिशन के जलसों का पहला नतीजा आ गया, उस्मान बुज़दार को भी कोरोना हो गया। तो क्या उस्मान बुज़दार साहब भी ऑपोजिशन के जलसों में गए थे? पीडीएम लाहौर के जलसे में उस्मान बुज़दार गए थे या नहीं, ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए, दो अहम बातें हैं बेटे। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि इसमें किसी को शक नहीं है कि ये कोरोना की जो लहर है ये पहली लहर से ज़्यादा शिद्दत रखती है और इसके मनफी असरात भी पहले से ज़्यादा है। अब जब लाहौर के अंदर रहने वाला या जिस शहर के अंदर भी मैस मोबिलाइजेशन होगी और आप SOPs को फॉलो नहीं करेंगे और अल्टीमेटली वो एक वबा जो है उसके पंजे उस शहर में मजबूत होंगे, तो उसकी जद में कोई भी आ सकता है। वो वज़ीर आला हूँ या हम में से आप में से कोई भी हो, दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब को इससे महफूज रखे। अपोजिशन की नादानियाँ और अटकेलियाँ जो है वो असल में इस वबा को फैलाने का बायस बन रही हैं। हमारा मुद्दा ये है कि खुदा के लिए आप कोरोना के नाम पे अंगड़ाइयाँ ना लें, कोरोना की बुनियाद पे आवाम से बदला ना लें। इनको फॉर द टाइम बीइंग ये जो इस वक्त लहर है इससे महफूज बनाने के लिए हुकूमत के साथ काविशों में हिस्सेदार बने। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद ज़ाहिर है उनको क्वारंटाइन होना था और उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। और साइन एंड सिम्टम्स जो हैं जिसने कोरोना के उस फेज से गुजरा है और चूँकि मैं भी वो मज़ा चख चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो कोरोना के मरीज़ होते हैं उसके लिए जितना मर्ज़ी आपके अंदर एनर्जी हो, जितनी मर्ज़ी आपके अंदर कमिटमेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको बेड पे लिटा के स्कूल लेता है। बेटे रैलीज जो है कानून ने रोकनी है, हमने कहाँ से रोकनी है? कानून हरकत में आएगा। जलसा देखने गए थे या नहीं? कहा पॉजिटिव आया है। महकमा सेहत कहता है कि जिसको कोरोना हो उसके इर्द गिर्द 20 लोगों का टेस्ट करना जरूरी है। क्या आप बतौर मेहमान मुआवने खसूसी और पूरी पंजाब कबीना कोरोना टेस्ट करवा रही है या आपने जरूरत महसूस की? जो उनके इर्द गिर्द लोग थे उनके लिए कल ही उनके सैंपल वगैरह दे दिए गए थे और सूबाई वज़रा में जो उनके कांटेक्ट में है वो ज़रूर उनके सैंपल होंगे। चूँकि मैं अपनी एंटीबॉडीज़ करा के ही मुतमईन हो सकती हूँ कि मेरे अंदर जो कोरोना वायरस था उसके ख़त्म होने के बाद ही एंटीबॉडीज़ आई हैं। तो अगर मेरा भाई अमीन हफीज़ चाहता है तो मेरे लिए इतना परेशान है तो मैं फिर दोबारा करवाती हूँ ताकि मुझे मैडम वो 80 और 90 रुपए का जो शहर में दूध मिलता है इस फूड अथॉरिटी में है, ये सवाल करते हैं पूरा शहर, एक एक बच्चा, एक एक माँ सवाल पूछती है कि बाजार में मिलने वाला 80-90 रुपए किलो जो दूध है वो हालत है,
जैली है, नकली है, बच्चों को पिलाएं ना पिलाएं, आप बताएं। और इसी सवाल के साथ ऐड कर लीजिएगा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का लगाया हुआ ये जो फूड अथॉरिटी, इसको कैसा मंसूबा समझते हैं? क्या है फूड अथॉरिटी, कहाँ पे है? देखिए, फूड अथॉरिटी आपकी खिदमत के लिए आपकी दहलीज पे है और आपके कदमों पे है। आपने अब देखना ये है, रुपए का दूध मिलता है, वो असली है नकली है? अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जितने जोश से, जितने पुरज़म हो के मेरा भाई हमसे पूछ रहा है, वो 35 साल वालों से भी पूछना था, थोड़ा सा जोश उनको दिखाते आप। हम तो अभी आए हैं, अभी 2 साल 2.5 साल पहले आके हमने जो नहीं हो रहा था और जो गलत हो रहा था, हमने उसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए कानूनी और हर तरह के जो बेस्ट पॉसिबल इनिशिएटिव थे उसका आगाज किया है। अब दूध की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रैंडम सैम्पलिंग और उसके साथ जुड़े, ये कहते हैं दूध असली नहीं मिलता, ये देखो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सेहत बता रही है कि वो कोई ये वही बिल्ली है मेरा हाल है जिनको बिल्ली से दूध बचाने के लिए रखवाले बनाए गए थे, तो ये बिल्ले और बिल्लियाँ वही है। सवाल ले लें, जी 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 जी। अपोजिशन प्रोपेगेंडा ये कर रही है कि उस्मान बुज़दार उनका पीडीएम लाहौर का जलसा देखने आए थे, क्या वो जलसा देखने गए थे या नहीं, इसकी तईद या तरदीद कर दें क्योंकि आप मामले खसूसी हैं। और दूसरा, फयाजुल हसन चौहान की कल की स्टेटमेंट है कि फरदौस आशिक अवान साहिबा ये जो बॉक्सिंग जूडो कराटे के मुकाबलों के बातें करती हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट सियासत में नहीं देनी चाहिए, ज़रा दोनों की तईद और तरदीद करें। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा भाई है चौहान, और वो जो भी कहे उससे सारे गुनाह उसको सारे गुनाह भी और साथ खून माफ है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उसके जज्बात से आगाह हूँ और मैं उसकी परेशानी से भी वाकिफ हूँ, लिहाजा मुझे उसके हवाले से कुछ नहीं कहना। दूसरा जो है वो जलसे में, चूँकि हमारे इस वक्त अपोजिशन को ये नहीं पता, नादान दोस्तों को, कि टेक्नोलॉजी के दौर में सर वहाँ जाके नहीं गिने जाते, सर गिनने के लिए ड्रोन कैमरे जो हैं वो मौजूद हैं, और ये धकिया नोसी सियासत वाले जो हैं इनको बताएं कि 150 कैमरे जो हैं वो सिर्फ आपकी अदाएं देखने के लिए लगाए गए थे कि आप कर क्या रहे हैं, और वो सीएम अपने कंट्रोल रूम में बैठ के उनको खुद मॉनिटर कर रहे थे कि जिन्होंने मसल दिखाए थे, जिन्होंने मुक्के दिखाए थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था, तो उनकी इस फेलियर के बाद की चेहरों पे उठने वाले जो असरात थे उसको भी हमने उन कैमरों की नज़र से महफूज बनाया हुआ है। अगर कोई अपोजिशन चाहती है तो वो तमाम तर उनके उतरे हुए चेहरे, उसके असरात और मायूसी के बादल जो उनके चेहरों से यहाँ हैं, वो हम उन कैमरों से उनको फुटप्रिंट्स उनके भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, जाते जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने अपोजिशन का जिक्र किया, अपोजिशन तो आपसे नाराज़ है, लेकिन आपके जो इत्तेहादी हैं और पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने असम्बली के फैसलों पर अमल नहीं करना तो असम्बलियाँ बंद कर दें। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो पीडीएम में तकसीम की बातें करती है, और जबकि बिलावल का कहना है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम अवामी दबाव के ज़रिए वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में आकर इस्तीफ़ा छीन लेंगे। पहली बात तो ये है कि जो दीवाने की बड़के हैं, दिन में देखने वाले जो ख्वाब हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, और ये ज़िद्दी बच्चे की खिलौना लेने के लिए एड़ियाँ रगड़ने की वो कोशिश है कि जैसे कोई बच्चा बिलखता है, एड़ियाँ रगड़ता है, ज़िद करता है कि मुझे हर हाल में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये आइन और कानून के ताबे कुर्सी होती है, और उस कुर्सी पे आने का कानूनी और आइनी रास्ता है। उसी रास्ते को इख्तियार करके
वज़ीर आज़म उस कुर्सी तक पहुँचे हैं और उस कुर्सी से जुदा होने का भी वही आईनी और कानूनी रास्ता है। ये बिलक बिलक के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगने से वज़ीर आज़म ना वो कहीं जा रहे हैं ना ये हुकूमत कहीं जा रही है। दूसरी बात आपने इत्तेहादियों की कही है, तो इत्तेहादी देखिए हर एक जमात का अपना मंशूर है और इलेक्शन अलग-अलग निशान पे लड़ के हम आए हैं। हम इलेक्शन जीतने के बाद इत्तेहादी बने हैं और इस हुकूमत में वो हमारे नहायत अहम पार्टनर्स हैं जो अवाम के मसाइल और मुश्किलात के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं। उनकी तरफ से कोई भी तजवीज़, कोई भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए उसको बरूए कार लाएंगे और जहाँ कहीं कोई गैप है उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। जो असेंबली के फैसले हैं वो असेंबली के स्पीकर होते हुए ज़ाहिर है वो जवाबदेह हैं और अगर कहीं वो ऐसी कानून साजी जो अवाम के मफाद से जुड़ी है उस पे अमल नहीं हो रहा तो हमें उस पे अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पे कोशिश करनी है और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। उनका मकसद भी अवाम का रिलीफ है और हमारा टारगेट भी अवाम को मुश्किलात से निकालना है और इंशाल्लाह हम मिल के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल के हवाले से जो इन्होंने बात की इस्तीफे की, तो मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, उसका मैंडेट जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से शेख रशीद साहब को दिया गया है, तो बिलावल से शेख रशीद साहब इस मामले में जो है सारी डिस्कशन कर लेंगे जो है। शुक्रिया। हाँ मैडम, थैंक यू जी।